Amraj. Dr. Mohammed Rafi Ahmed, sir, Assistant Professor, Department of Knowledge. Dr. Mohammed Nazibur Rahman, sir, Assistant Professor, Department of Knowledge. Dr. Mohammed Tanveer Alam, sir, Assistant Professor, Department of Kuliat. Please come on the stage, sir. Before proceeding the program, I would like to call Dr. Raghib Ahmed Nas, PG Scholar, DAL 2020 to 21, Department of CSM, to come on stage and recite few words of Holy Quran. Please come on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. یہ میں نے سورہ مومنون کی چند آیتیں تلاوت کی ہے.
آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، جس میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق بالخصوص ایک اسپرم سے لے کر کے زائگوٹک پروسیس اور پھر اس کے بعد ایک پورا فیٹس بننے تک اور پھر ایک مکمل انسان ہونے تک جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور بتدریجی انعامات ہیں، اس کا ذکر اللہ نے اس میں فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کن کن نعمتوں سے اللہ پاک اس کی پرورش فرماتا ہے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دی اور خاص طور سے زمین کو اس لائق بنایا تو اس زمین پر رہ سکے، وہ ساری نعمتوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اور کچھ ریسرچ کی طرف بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ریسرچ کی بہت سی چیزیں ہیں، تم اس پر غور کرو۔ اس ترجمے کو، اس مفہوم کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا چنی ہوئی مٹی سے فرمائی، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط اور محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق شے کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے لوتھڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی ایک دوسری شکل میں بدل کر بتدریج نشو و نما دی۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ اور سب سے بہتر تخلیق فرمانے والا۔ پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔ ہم نے ایک متعینہ مقدار میں بادلوں سے پانی برسایا، ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں میں ٹھہرایا جس سے سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے اور ختم کر دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے، تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور یہ درخت یعنی زیتون، یہ بھی ہم نے پیدا کیا جو سورہ سینا سے نکلتا ہے اور تیر اور کھانے کی والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں غور اور طلب اور ریسرچ کے پہلو ہیں کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you so much. The knowledge you have acquired is the foundation for future success. Embrace the opportunities that lie ahead and apply what you have learned to make a positive impact on your endeavors. With this, I would like to call Dr. Mohammed Tanveer Alam, sir, Assistant Professor from HOD PSM GTCS, to give his welcome speech from program introduction on this occasion. Please come on, Director. Respected Chief Guest, Professor Dr. Surendranath Bhaskar, Honorable Vice Chancellor, Bihar University of Health Sciences, Meetapur, Patna. Respected Principal Sir, the organizing Chairman of this 15 days charitable program, my colleagues on dais, senior teachers, other faculties, the doctors from the hospital side, PG scholars, and the freshers. السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس کالج میں ریسپیکٹڈ چیف گیسٹ صاحب، یہ 4تھ بیچ ہے ہمارا پی جی کا، اور بہار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس سے یہ پہلا بیچ ہے۔ فرسٹ پی جی بیچ جو ہمارا وہ 2020 اور 21 میں آیا، جس میں کیپیسٹی ہم لوگ کو 31 کی ملی اور 26 کا ایڈمیشن ہوا۔ دوسرا بیچ جو آیا اس میں بھی کیپیسٹی اتنی ہی انٹیک کی ملی، 27 بچے انکلکیٹ ہوئے اس میں، اور جو تھرڈ بیچ آیا اس میں ڈی ریزلٹ ہو گئی تو ٹوٹل بچے 31 آ گئے۔ لاسٹ ایئر جو پرمیشن NCISM سے ملی تھوڑا کم کر دیا گیا، فلیش کر دی گئی سیٹ ہماری، اس لیے 23 بچوں کی پرمیشن ملی، جس میں سے سب کے سب ایڈمیشن لے چکے ہیں۔ اور NCISM کی طرف سے یہ کیریکولم 2 سال سے پی جی کے لیے چل رہا ہے۔ جو پی جی کے بچے آئیں گے یہاں پہ اسٹوڈنٹ انرولڈ ہوں گے،
उनके लिए 15 डेज और 19 आवर्स का मिनिमम का करिकुलम रखना है। उसका जो स्लोगन है वो ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोफिशिएंट स्कॉलर। मतलब दो मोटिव है गवर्नमेंट का, एक तो उस जिस इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं उनके उन इंस्टीट्यूशन को समझ लें ताकि उनके साथ 3 साल फिजिबल हो, अच्छे से वो काम कर सकें, और दूसरा ये कि रिसर्च के ताल्लुक से मेन स्ट्रीम जो मेडिसिन है उसकी तरह इनके माइंड को हम लोग प्रोक्योर कर सकें ताकि तैयार कर सकें कि वो फ्यूचर में उस चीज को और उस इम्पोर्टेंस को समझें और अपना जो प्लान है उसी तरह से वो लोग करें। तो ये दो मोटिव को, इस इंस्टीट्यूशन को समझना है, इस कोर्स की अहमियत को समझना है। इस ताल्लुक से जो 15 डेज प्रोग्राम था उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जिसमें जो वेटेज दिया गया था एज पर इंसेशन के रूल की कंप्यूटर साइंस उनको आनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़नी चाहिए, इमरजेंसी की स्किल्स उनको आनी चाहिए, उनको पीपीटी प्रेजेंटेशन और टेक्निकल इश्यूज आनी चाहिए, उनको रिसर्च के ताल्लुक से जो और भी चीजें दरकार है वो सब होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये डिजाइन किया था पूरा प्रोग्राम, जिसमें कुछ लेक्चर्स हमने ऑनलाइन भी लिए। ऑनलाइन लेक्चर्स जो 9 या 10 के आसपास थे, उसमें पिछले साल शारजा से और दीगर अलग ममालिक से जो लेक्चर्स थे उनको भी चलाया हमने। इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो लोग यूनानी में टॉप की पर्सनालिटीज है उनके लेक्चर्स को चलाया गया। साथ में जो लेक्चर इंडिजियस लेक्चर थे उस लेक्चर में एक बहुत यूनिकनेस 2 साल से हम लोग ला रहे हैं जो कहीं भी नहीं हो रहा है कि इन फ्रेशर्स को इनके सीनियर्स जिनकी सिनॉप्सिस कंप्लीट हो चुकी है, पास आउट हो चुकी है, उनकी सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन इनके सामने रखा जाए ताकि जो आगे पहला काम उनको करना है फर्स्ट ईयर में सिनॉप्सिस बनाना है, उनको रिसर्च प्रोटोकॉल बनाना है, तो वो टोटल हर डिपार्टमेंट में 5 स्ट्रीम में पीजी चल रहा है सर, उनको सबको वो चीजें दिख जाए कि कैसे तैयार करना है। तो वो एक था इनके लिए एडिशनल कॉम्बो के टाइप पे। उसके साथ हमारे यहाँ के फैकल्टी और भी पीजी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 5 अलग से लेक्चर्स दिए अलग अलग टॉपिक्स पे, एनएबीएच पे, इसी तरह से आयुष्मान भारत पे लेक्चर आया। और फिर यहाँ की खुद इंडिजिनस फैकल्टीज जो अपनी कॉलेज की, उन्होंने 23 लेक्चर्स दिए इस पे। तो टोटल ओवरऑल 63 लेक्चर्स था जो मोर देन 90 आवर्स का था, जो कि कुछ कुछ लेक्चर का स्लॉट 2 आवर प्लस था। तो इस पूरे प्रोग्राम में आज के दिन हम लोग जो आज का प्रोग्राम है, सबसे पहले डाइस पे बैठे जो गेस्ट हैं और जो होस्ट हैं उनकी स्पीचेस के साथ साथ सबसे पहले आज के जो फ्रेशर्स हैं उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 15 दिन का कैरिकुलम उनका कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद हमने एक प्रोग्राम, सर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का इंटरनेशनल पैथोलॉजी डे पे उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। साथ में फिर जिस पीजी स्कॉलर्स ने और फैकल्टीज ने प्रेजेंटेशन दिया है सर, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है हमारी, जो 2 लोग खास करके डॉक्टर समरन और डॉक्टर मशकूर अहमद ने जो पूरे 15 दिन लगातार इसमें ब्लड एंड स्वेट दिया है, तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फिर लास्ट में स्पीच होगी हमारे गेस्ट की, और आखिर में एक आप लोगों को अनाउंस करने के लिए प्रिंसिपल साहब की तरफ से कहा गया है, जो अल्लामा कबीरुद्दीन लाइब्रेरी है उसमें आज से ऑनरेबल वाइस चांसलर के हाथों एक कंप्यूटर सेक्शन का इनॉग्रेशन होगा। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग वहां पर चलेंगे। तो आज फिर से इस प्रोग्राम में आए वाइस चांसलर सर जो पहली बार इस कैंपस में आए हैं। सर ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली रिसर्च स्कॉलर्स का है, इसलिए वही लोग इसमें मदद किए गए हैं जो 4 बैच से हैं और प्रोग्राम में आए। और दीगर लोग, सबका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को की शुरुआत जिस यूनिवर्सिटी से हुई है और उसके ताल्लुक से भी हम लोग अच्छा रिसर्च प्रोटोकॉल और रिसर्च के थ्रू जो रिसर्च का एम्बियंस हम डेवलप कर सकें, जो इंटेंशन की बात है, उसमें हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. This program is successfully conducted with mostly live lectures from faculties and PG scholars from all PG departments. There were 26 synopsis presentations from each department from faculties and 5 lectures from PGs on different topics. 9 recorded lectures were also there. Total 63 lectures were presented in the orientation program. Now with this, I would like to call Dr. Mohammed, Professor Tawheed Kibriya sir, Principal cum Superintendent GTCS, to give his insight on this overall program. Please come on, Daisa.
आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिन्हा, ऑनरेबल वाइस चांसलर बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी, डाइस पर बैठे हुए हमारे फैकल्टी मेंबर और अदर्स जो हमारे सीनियर प्रोफेसर लीडर जो है फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर, खास तौर से आज जो प्रोग्राम का शेड्यूल रखा गया है ये नए फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि जैसा कि इसके पहले इन्होंने इसका मैंने ऑब्जेक्ट बताया, ये फ्रेशर डे के लिए क्यों रखा गया है, क्योंकि ये 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम इन लोगों को एकदम कंपल्सरी था कि जो है सबको आना है, उन्हें तो अटेंडेंस करते और अटेंडेंस के साथ पे भी करते। तो इन लोगों ने काफी जो है शुरुआती दौर में इनको एक ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से प्रोटोकॉल मिलना, और सब लोगों ने इसके साथ साथ उसमें इन्वॉल्व जो भी मैनेजमेंट में दिया था काफी जो है मेहनत की। तो ये प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो है ना जो लोग भी है आए हैं नए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता क्या था कि पहले नए स्टूडेंट आते थे तो वो क्लास में चले गए और जो कंसर्निंग टीचर थे उनके अलावा किसी को जानते नहीं थे, अदर्स फैकल्टी या दूसरे यहाँ के नॉर्म या प्रोटोकॉल है। इन 15 दिनों में न सिर्फ ये कि उनको जो है ना एकेडमिक बात कही गई या लेक्चर दिया गया, बल्कि पूरे कैंपस को घुमाया गया, एक एक डिपार्टमेंट में जाके इंट्रोड्यूस कराया गया क्या करना है, क्यों है, कौन टीचर किसका है। तो उससे ये है कि 15 दिन में जो 3 साल इनको वक्त गुजारना है, 15 दिन में सारे प्रोटोकॉल को समझ चुके और आइंदा हम समझते हैं कि ये लोग उसके मुताबिक चलते रहेंगे। हम लोग के पहले बहुत ख्वाहिश थी कि जो है हमारे नए बात चांसलर नई यूनिवर्सिटी बनी है। इत्तेफाक की बात ये कि यूनिवर्सिटी डिक्लेयर होने के बाद हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में गए थे, तो हमारे मालूम हुआ जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब भी नए यूनिवर्सिटी के आए हैं, तो पहली मुलाकात हम वही किया और उनकी बातचीत से ऐसा लगा, उनका विजन जो आया कि एक हेल्थ यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट जो ये होना चाहिए, उससे जो है हम लोग बहुत काफी इंप्रेस है। और उसके बाद तो कंप्लीट चले गए, उसके बाद बहुत सारी बातें होती रही, मीटिंग हुआ और हम समझते हैं कि नया हेल्थ यूनिवर्सिटी हुआ। तो हमारा मीटिंग में भी एक ही चीज था कि अगर यूनिवर्सिटी का नाम पैदा करना है तो सिर्फ एक काम करना है कि उसका सेशन में करो। अगर सेशन जिस यूनिवर्सिटी का सही, हम समझते हैं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी वही है। सेशन की वजह से काफी जो है न सिर्फ यूनिवर्सिटी को बर्डन पड़ता है, बल्कि कॉलेज वगैरह को भी बर्डन पड़ता है। वहाँ के जो भी हेड होते हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग होता है पीछे के भी सबको लेकर चलना। तो हमारा खास तौर से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट होगा कि सेशन जो है ना हम लोग शुरू ही से कंप्लीट करते चाहे तो सारा प्रॉब्लम जो है, और हम समझते हैं कि बिहार की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो सबसे बेस्ट कहलाएगी। तो सर से पहले से भी चूंकि हमारा बच्चा ही पढ़ता था, हमारा बच्चा सर का सब स्टूडेंट रहा है, इसलिए इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं। पटना मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल थे, काफी एक्सपीरियंस रहे और इनके लिए दूसरे सजेशन की राय नहीं जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि अभी तक जो हम लोगों को इंटरेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ, उससे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। बहरहाल मैं आज के जो लोग इससे महफिल में शामिल हुए हैं, खासतौर से हमारे वाइस चांसलर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनके लिए, इतने टाइट शेड्यूल के बावजूद यहाँ हॉल दिए, शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now, for clarification of theme case, I would like to call Dr. Mohammed Nafis Iqbal sir to present class 4, Dr. Mohammed Anas sir to present memento and shawl from respected principal sir.
Now, I would like to call our Honorable Professor Dr. Surendra Nath Sinha sir to present shawl, flower pot and memento to our respected professors, Sohit Kibriya sir. Now it's my honor to introduce our next speaker, Professor Dr. Surendra Nath Sinha sir. Uh, but without coming on dais, sir, I want to give his formal brief introduction that sir has principal of former principal of PMCH and DFCS and an expert on biochemistry. Now, sir is now this is our pleasure that sir is a vice chancellor of BHSU or Bihar Health Science in University. Without further ado, let's welcome Dr. Surendra Nath Sinha sir to come and dais with a warm round of applause.